Hello students, welcome in my YouTube channel, that is the Biology with Deshmukh Madam. In today's lecture, we are talking about the determination in human being. Actually, in human being, how the sex determination takes place. So we will see in this period. Means what? That is whether male or female, how the male or female they are developed. So how they are developed? So we will see in this period. As we know that there is a 23 chromosomes present in that is the human being. Yes, 23 pairs. Okay, 23 pairs. 23 pairs means how many? That is a 46 chromosome. Right? 46 chromosome. Out of that, as we know that 22 pairs. That is the 44 chromosomes. They get control the body character, which is called as autosomes. Yes, उसे क्या कहा जाता है? Autosome. Whereas one pair, yes, remaining one pair, so it means that two chromosomes, so they get control the body, they control the sex, which is called as sex chromosome. उसे क्या कहा जाता है? Sex chromosome कहा जाता है. Yes. So these sex, that is a two chromosomes which are present in the human being. So as we know that in male, that is the XY type chromosomes are present. Male में कौन से होते हैं? XY type. Whereas in female, female में कौन से होते हैं? That is the XX chromosomes are present. So how this sex determination takes place? तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है वो देखने का हमें. सो दिस दैट इज द बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम. सो दैट्स व्हाई इन ह्यूमन बीइंग फीमेल आर होमोमॉर्फिक. यस, ये क्या है? होमोमॉर्फिक. बिकॉज बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम, होमोमॉर्फिक. Yes, it is a homomorphic. Whereas in this X and Y, so these two different chromosomes are present, which is called as heteromorphic. उसे क्या कहा जाता है? Heteromorphic कहा जाता है. Yes, and means here in female में जो होते हैं, देखिए अभी total, if we are talking about the total chromosomes, so there is a 44 are the autosomes. 44 are the autosomes plus सेक्स क्रोमोसोम कौन से है? दैट इज XX. समझ में आ रहा है? फीमेल में जो होते हैं, फीमेल में जो होते हैं 44 are the autosomes. Yes, because 44 chromosomes, that is a autosomes. So 44 in female, 44 are autosomes and 2, that is a chromosome, sex chromosome. And which type of the sex chromosome? That is a X and EX. Both are the same, which is a homomorphic. Whereas in that is a male में कौन से होते हैं? That is a male having a 44 are the autosomes which get control the body character, and one pair, that is the X and Y. One pair कौन सी होती है? X and Y. Okay. So here whenever the see here, अभी यहाँ पे देखिए 44 autosomes XX chromosome, 44 autosomes XY chromosomes are present. During the gamete formation in male, here the diploid germ cell in testis undergoes spermatogenesis to produces two type of the haploid sperms. Whenever this male they undergoes that is the spermatogenesis, so it get formed the two type of the that is the sperms. यस, यहाँ पे जो है ये मेल में जो है whenever they undergoes the actually gamete formation, जब इसका gamete formation होता है, so at that time, so whenever they undergoes the spermatogenesis, so they get produces two type of the that is the sperm 50-50%. So which type of the 50-50? See here, first one is 22 autosomes.
जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट ये 44 के हैप्लॉइड होंगे, 2 गैमेट यहाँ पे फॉर्म होंगे। 50% आर 22 एटोसोम प्लस कौन सा भी एक आएगा, इन दोनों में से कौन सी, यहाँ पे हम यक्स लेंगे। एंड वेयर एज दीज आर द 50% एंड 50% आर द दैट इज द 22 एटोसोम्स प्लस दैट इज यहाँ पे यक्स लिया, अभी कौन सा रहेगा, दैट इज अ वाई। So such 2 type of the sperms are produced in male because male are the heterogametic. यहाँ पे both gamete are not same, they are different. So that's why such 2 type of the sperms are formed after the that is the copulation, after the that is जब ये गैमेट फॉर्मेशन होता है तभी ये दो इसमें जो है डिवाइड होता है। वेयर एज इन फीमेल में क्या होगा, सब जो क्रोमोसोम है दैट इज 44 एटोसोम्स प्लस यक्स, क्योंकि बोथ आर द सेम। यहाँ पे 2 गैमेट है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 गैमेट नहीं है, बोथ आर द यक्स क्रोमोसोम। सो यहाँ पे एक फॉर्म होगा दैट इज 22 एटोसोम। अभी जब मेल और फीमेल जब मेल और फीमेल इनका जब कपुलेशन होगा, सो एट दैट टाइम इफ इन दैट अगर इसमें जो है 22 एटोसोम्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी यहाँ पे 22 एटोसोम्स प्लस यक्स, ये तो कौन सा है, फीमेल का हाफ गैमेट। सो हियर इफ इट इज क्रॉसेस विथ, अगर इसमें से 22 एटोसोम प्लस यक्स इनका अगर फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट जो है 44 एटोसोम्स प्लस यक्स एंड यक्स मीन्स व्हाट इज दिस, ये क्या है 44 एटोसोम। सो दिस इज द जाइगोट, दिस इज द न्यू ऑफस्प्रिंग, ये जो है न्यू ऑफस्प्रिंग है, ये न्यू चाइल्ड है। ये चाइल्ड क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, देखिए यक्स यानी शी इज अ डॉटर, दैट इज अ फीमेल चाइल्ड आर फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं, हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन इन द ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखिए फीमेल जो है फीमेल जो है हमेशा यक्स जो एग है वो डेवलप करती है, यक्स ही उसकी तरफ से आता है। लेकिन मेल जो है वेदर दे आर सीक्रेट द यक्स स्पर्म और वेदर दे आर सीक्रेट द वाई स्पर्म, डिपेंडिंग ऑन दैट सो द ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल और मेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो यही कंडीशन रहेगी, कौन सी, फीमेल हमेशा कौन सा क्रोमोसोम सीक्रेट करेंगी, यक्स क्रोमोसोम। बट यहाँ पे जो है अगर मेल ने यक्स क्रोमोसोम सीक्रेट किया तो फीमेल चाइल्ड होगी। एंड इफ मेल सीक्रेटेड द वाई क्रोमोसोम, सेकंड कंडीशन देखेंगे, अगर मेल ने जो है, क्योंकि फीमेल तो अभी हमेशा कौन सा क्रोमोसोम सीक्रेट करती है, यक्स क्रोमोसोम ही सीक्रेट करती है। एंड यहाँ पे अगर ये फीमेल ने जो है 22A प्लस दैट इज अ वाई क्रोमोसोम सीक्रेट किया तो ये फॉर्म होने वाला क्या है, 44 आर द एटोसोम प्लस यक्स एंड वाई, यहाँ पे मेल ने कौन सा स्पर्म सीक्रेट किया, द वाई, इट मीन्स दैट इज द मेल, दैट इज द बॉय इज फॉर्म। समझ में आ रहा है हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पे अगर मेल की तरफ से यक्स क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल चाइल्ड दैट इज द डॉटर इज फॉर्म, एंड इफ दिस मेल इट इज सीक्रेटेड द वाई क्रोमोसोम, इट मीन्स दैट द मेल चाइल्ड इज फॉर्म एंड इन अ सच वे दैट सो देर इज अ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो इट मीन्स दैट व्हाट इज द कंक्लूजन, आप हमें देखिए ये बात सबको जाननी चाहिए कि जो भी लड़का या लड़की होती है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल, इट इज अ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द दैट इज द मेल के ऊपर डिपेंड होता है। हम जो महिलाओं को आज भी देखिए बहुत सारी गांवों में वगैरह क्या होता है कि लड़की या लड़का हुआ तो उसी औरत को जो है ब्लेम करते हैं कि आप तुम्हारी वजह से लड़का या लड़की हुई सो एंड सो। बट हियर एक्चुअली
साइंटिफिकली हम देखेंगे तो इट इज अ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द मेल, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल। फीमेल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि अगर मेल ने यक्स क्रोमोसोम सिक्रीट किया, सॉरी यक्स स्पर्म सिक्रीट किया, तो फीमेल चाइल्ड फॉर्म होती है। एंड इफ it gets secreted the Y sperms, it means that there is a formation of male. Means here it is a totally, father is responsible for the determination of sex of child and not the mother. Mother depend नहीं रहती है, समझ में आ रहा है? Father is not responsible for the determination of sex. Sorry, father is responsible for the determination of sex, not the mother. Mother depend नहीं होती, it is a totally depending upon the father, not the mother. So in a such a way that there is a determination of sex in the human being. समझ में आ रहा है? देखिए क्या देखा हमने, how the determination of sex इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सेक्स कैसे डिटर्मिनेट होता है वो देखा हमने। एज वी नो दैट 23 पेयर्स आर क्रोमोसोम्स present in the human being, 23 pairs, it means that 46 chromosomes are present. Out of that 22 pairs, that is a 44 chromosome, it get control the body character, which is called as autosomes. And remaining one pair, it means that that is 2 chromosome, it get determine the sex. So as we know that in that is the हमें पता है जो मेल है, मेल में जो है यक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यक्स एंड वाई, सो दीज आर द टू डिफरेंट क्रोमोसोम, सो दैट्स वाई द मेल आर द हेट्रोमॉर्फिक, वेयर एज इन फीमेल, फीमेल में जो है यक्स यक्स क्रोमोसोम रहते हैं, सो इट मीन्स दैट इट इज अ होमोमॉर्फिक। ओके, सो इन फीमेल, जो फीमेल है, फीमेल में 44 ऑटोसोम्स प्लस यक्स यक्स क्रोमोसोम रहते, वेयर एज इन मेल 44 एटोसोम्स प्लस यक्स वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ओके, ये मेल में और फीमेल में होता है। जब so whenever the gamete formation is takes place in the male, so at that time diploid germ cell in testes undergo the spermatogenesis, and in that spermatogenesis 2 type of the sperms are formed. First one is 22 autosomes plus X chromosomes, and whereas second condition 22 autosomes plus Y chromosome. Okay, so यहाँ पे अगर फीमेल में तो हमेशा यक्स ही क्रोमोसोम सिक्रिट होगा, मेल में अगर यक्स क्रोमोसोम सिक्रिट हुआ, इट मीन्स दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल। कैसे फॉर्म होती है देखिए, हमने देखा है गैमेट फॉर्मेशन में हैप्लॉइड हॉप्लॉइड होते, सो दैट्स वाई ये 44 के 22 आ गए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये 22 कैसे आएंगे। गैमेट देखिए, हमने इसके पहले भी देखा, जब गैमेट फॉर्म होते तो गैमेट में क्या होता है, डिवाइड होता है। 44 के हाफ कितने होंगे, 22, सो हियर द गैमेट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस, सो दैट्स व्हाई वी आर रिटन हियर दैट इज अ 22 एटोसोम्स प्लस यक्स, ओनली वन लिए है हमने यक्स क्रोमोसोम्स, गैमेट हाफ होते इसलिए हमने 22 लिया। यहाँ पे अगर मेल में यक्स सिक्रिट होगा, सो इट बिकम फीमेल, एंड इफ male secreted the Y chromosome, it means that it is a male child is formed, and in a such a way that means here totally father is responsible, father or male, yes, here father and here the mother. So mother is not responsible for the determination of child, actually totally father is responsible for the determination of the sex of child, whether it is a male, सॉरी फीमेल और मेल, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहता है, फादर यानी मेल के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर फादर ने यक्स क्रोमोसोम सिक्रीट किया तो फीमेल फॉर्म होगी, एंड इफ फादर सिक्रीटेड द वाई क्रोमोसोम इट गेट फॉर्म द मेल क्रोमोसोम। यस, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम के ऊपर जो है टोटली डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स रहता है यहाँ पे। यस, इसके बाद हम देखेंगे दूसरी एक कंडीशन देखेंगे, ये क्रोमोसोम, ये जो कंडीशन हमने देखी हियर इट इज अ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द दैट इज द क्रोमोसोम, बट वन फॉर युअर इंफॉर्मेशन, वन some exceptional case we are study here, that is the environmental जो है, how the environmental factor it is affecting on the
दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हमने जो देखा अभी कौन सा, दैट इज अ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमोजोम, कौन से क्रोमोजोम सीक्रेट होंगे, सो इसके ऊपर डिपेंड रहता है, वेदर एक्स इज सीक्रेटेड फ्रॉम मेल, सो फीमेल इज फॉर्म, एंड इफ वाई इज सीक्रेटेड देन द मेल इज फॉर्म। बट हियर वन कंडीशन वी आर स्टडी हियर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हियर नॉट क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम होते हैं वो डिपेंड नहीं रहते वेदर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल। सो हाउ द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इन्वायरमेंट रहता है, इन्वायरमेंट यानी क्या, अपने आजू बाजू में जो रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? इन्वायरमेंट कहते हैं। सो हियर वी आर टेकन वन एग्जाम्पल, दैट इज अ बोनीलिया विरिडिस। हियर एग्जाम्पल इज बोनेलिया, इट इज अ वन टाइप ऑफ द इंसेक्ट, ये जो है एक स्मॉल इंसेक्ट है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन क्रोमोजोम, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, सो सी हियर इन दिस वर्म्स, एक्चुअली whenever the larval condition is present, लार्वा यानी क्या, जब शुरू की कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग में जो लार्वल कंडीशन होती है, शुरू की जो छोटे छोटे रहते हैं ना फ्रॉग में, उसको पूंछ वगैरह रहती है, उसे टोड कहते हैं। सो इट इज अ लार्वल कंडीशन ऑफ फ्रॉग। सो लाइक दैट इन बोनीलिया विरिडिस लार्वल कंडीशन इज प्रेजेंट। Okay, so the sex of this worm of Bonellia viridis depending upon which location the Bonellia larvae get settled. The marine female Bonellia worms, actually here the one part is we are talking about this, that is a proboscis. Proboscis. What is this proboscis? Actually it is a part of body. एक्चुअली ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट का एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है, उससे क्या कहा जाता है? प्रोबोसिस। उससे क्या कहा जाता है? प्रोबोसिस। इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। यस, इफ दिस अगर ये लार्वी, इसकी जो लार्वी रहती है, यस, इफ द लार्वल कंडीशन, इफ दिस लार्वा, यस, जब ये लार्वल कंडीशन में होता है, एंड इफ दिस लार्वा, सो दे लैंड ऑन द फीमेल प्रोबोसिस, फीमेल के जो है ये जो बॉडी का पार्ट है, अगर उसके कांटेक्ट में आ गया, सो इट गेट फॉर्म द, सो proboscis and enter female mouse, it get migrate into the uterus and it get converted into the male. ये किस में कन्वर्ट होता है? मेल में। यस, ये किस में कन्वर्ट होता है? मेल में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है? यस, क्या बोल रही मैं? यस, हियर दिस इज द बोनेलिया विरिडिस, इट इज अ वन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट का एक बॉडी का एक पार्ट है, उसे क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टोटली इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस। ये जो है बोनेलिया विरिडिस, उसके लार्वल कंडीशन जब फीमेल के ये पार्ट में कांटेक्ट आती है, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द, दैट इज अ मेल। एंड अगर ये इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, ये लार्वल कंडीशन, ये फीमेल के ये पार्ट में, ये बॉडी पार्ट में अगर कांटेक्ट में नहीं आएगी, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फीमेल। समझ में आ रहा है? यानी यस, समझ में आ रहा है? अगर ये बोनीलिया लार्वी सेटल ऑन द सी फ्लोर, यानी अगर ये सी फ्लोर में ही, एक्चुअली इट इज दिस इंसेक्ट, इट इज दैट इज एक्वेटिक, इट इज एक्वेटिक एनिमल है ये। अगर ये पार्ट में कांटेक्ट नहीं आएगा, ये इसका लार्वा अगर प्रोबायोसिस, ये बॉडी पार्ट में कांटेक्ट नहीं आएगा, इट बिकेम कन्वर्टेड इनटू द फीमेल, इट इज सेटल डाउन ऑन द सी फ्लोर। ये किस में ये होगा? दैट इज अ सी फ्लोर में सेटल डाउन होगा और इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फीमेल। मीन्स हियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रही मैं? मीन्स हियर इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, ये इसकी लार्वी फीमेल के ये पार्ट में कांटेक्ट में आ गई, इट गेट कन्वर्टेड
converted into the, that is a male, and if it is not contact with this, it get converted into the female. Means it is a totally depending upon the environment whether the male or female is फॉर्म. समझ में आ रहा है? सो दिस इज वन एग्जाम्पल. बोनीलिया विडीज आपको पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया. मीन्स हियर इन दिस बोनीलिया विडीज इट इज अ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट वेदर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल. इफ दे आर कॉन्टैक्ट विद दिस लार्वी विद फीमेल प्रोबॉयसिस, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी. इसके पार्ट में अगर कॉन्टैक्ट में आ गए, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मेल, एंड इफ इट इज नॉट कॉन्टैक्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू द फीमेल. यस, सो दिस इज अबाउट द वन एक्स्ट्रा. यानी बाकी नॉर्मल कंडीशन में ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर ही डिपेंड रहता है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कुछ इसमें, इंसेक्ट में, कुछ एनिमल्स में, कुछ प्लांट्स में डिपेंड होते हैं, जिसके मीन्स यार टोटली इन्वायरमेंट इज डिपेंडिंग वेदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल. ओके, समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी. ओके, थैंक यू.